एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। इसके पहले वाले लेक्चर्स में चैप्टर 3 से पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B एंड क्वेश्चन 3 हमने डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अग्री और डिसअग्री विथ रीजंस। यहाँ पे भी बच्चों आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 3 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। सो 1 मार्क इज फॉर आंसरिंग अग्री एंड डिसअग्री। आपने अग्री लिखा या डिसअग्री लिखा, इसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड जो आप रीजंस लिखोगे, दोज रीजंस कैरी 3 मार्क्स। ओके, सो टोटलिटी में दिस क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। ओके, सो क्विकली लेट अस गो थ्रू ऑल द अग्री डिसअग्री फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, सबसे पहला, एवरी डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल is a demand. Now tell me whether you agree or disagree with this statement. क्या every desire is a demand? No. So you have to state that I disagree with this statement because not all desires can be converted into demand. Right? तो reasons अभी आपको लिखने हैं। आपने ये disagree लिख दिया, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। Right? अब ये जब आप reasons ठीक से लिखोगे तो बाकी के 3 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। Okay? Let us read. Desire refers to a mere wish of a person to have a particular commodity. तो desire का मतलब आप यहाँ पे समझा रहे हो, a person can desire anything at any point in time. There are no limitations for a desire, right? Desire कुछ भी हो सकता है, right? लेकिन demand कब होगा? जब आपके पास ability and willingness to pay होना चाहिए, आपके जेब में पैसा होना चाहिए और खर्चा करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, right? Demand refers to a desire backed by ability to pay and willingness to pay for a particular commodity. ये बहुत important definition है demand का। A desire has to be backed by ability and willingness to pay, तब हम बोलते हैं ये demand हो गया, right? Okay, आगे। Those desires become demand which are backed by purchasing power, ability and willingness to pay. Let us look at an example. A poor person has a desire to purchase a flat but does not have adequate purchasing power. Then it will simply be a desire and not demand. ये बहुत important differentiation है बच्चों। That आपका desire है, आपका wish है, लेकिन अगर आपके पास purchasing power नहीं है तो that will not be considered as demand. Okay. So at the end, let us look at the formula. In short, demand is desire plus ability and willingness to pay. जब तक ability और willingness से backed नहीं होता है desire, वो demand नहीं कहला सकता है। Is this very clear? क्या ये आपको समझ गया है agree disagree? इस तरह से point wise अगर आप एग्जाम में आंसर करोगे बच्चों, believe me, full marks मिला सकते हो आप। Okay, this is very scoring, लेकिन आपको ठीक से point wise लिखना है। Alright, let's look at the next question. Various factors influence the elasticity of demand. अब हमने देखा हुआ elasticity of demand में बहुत सारे factors हैं जो influence करते हैं. So that is why you have to say that I agree with this statement. And reasons में you are going to write down all the factors that influence the elasticity of demand. Let us quickly revise. Factors influencing elasticity of demand देखना है बच्चों. And the short code is very easy. Cup, dish and nut. This is the short code. Cup, dish and nut. Let us see one by one. What does C stand for? C stands for complementary goods. अब हमने देखे बच्चों complementary goods क्या होते हैं? They have to go hand in hand. मतलब अगर मेरे पास कार है तो मुझे पेट्रोल की जरूरत है, अगर मेरे पास पेन है तो मुझे उसमें इंक की जरूरत है, ये दे गो हैंड इन हैंड। तो ऐसे गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बच्चों, वो कैसी होती है? दैट इज रिलेटिवली inelastic. And why is that so? Now for example, मेरे पास अगर व्हीकल्स है, मेरे पास अगर कार है, तो इवन दो फ्यूल की प्राइस थोड़ी बढ़ जाए, I will always have to buy fuel, right? Because अगर फ्यूल नहीं है तो मैं कार कैसे चलाऊंगी? Isn't it? So even though we can see that in our day-to-day lives as well, even though the prices of petrol, diesel keep increasing, हम buy करते ही है, right? Because हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो बिना पेट्रोल और डीजल की तो चल ही नहीं सकती. So that is why अगर complementary goods है तो उनकी जो डिमांड होती है वो relatively
इनइलास्टिक होती है. सो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 6 here, complementary goods. The demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. Alright. For example, a fall in the price of mobile handsets may lead to a rise in the demand for SIM cards. Okay, getting it? So complementary goods अगर है तो उनकी डिमांड होगी relatively inelastic. Alright. Next क्या है? Cup. U stands for uses. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो मल्टीपर्पज यूज की है, तो अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीद लेंगे, राइट, बिकॉज बहुत सारे उसके यूजेस है. लेकिन अगर ऐसी चीज है जिसकी एक ही यूज है, तो इवन तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, हम कितनी खरीद सकते हैं, बिकॉज एक ही तो यूज है उसका, हम और क्या करेंगे उससे, राइट. उस कमोडिटी के कितने यूजेस है, इसके ऊपर भी उसकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है. सो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ यूजेस. देखिए क्या लिखा है, single use goods have less elastic demand, however multi use goods have more elastic demand. For example coal, electricity etc, right, because वो बहुत सारे uses, बहुत सारा काम हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, कोल से, तो अगर उनकी प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड तुरंत अफेक्ट हो जाएगी. ऑलराइट, तो दो हमने देख लिए. कप, C was complementary, U was uses, and P stands for proportion of expenditure. हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना हिस्सा हम स्पेंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर जब खरीदते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स फॉर्म अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर 50 पैसे 1 रुपए का चेंज भी हो जाता है तो हमारी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. लेकिन अगर हमारा कोई बड़ा पोर्शन है हमारे पूरे एक्सपेंडिचर का, फॉर एग्जांपल हम टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इट इज अ बिग चंक ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो जरूर इनके प्राइसेस के वजह से हमारी डिमांड चेंज होगी. सो दैट इज व्हाई उनकी जो इलास्टिसिटी है बच्चों, दैट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक. ये जो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट है बच्चों, ये हमारे ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में था, अभी नए टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ये नहीं रहेगा, बट बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. ओके, इफ यू विश यू कैन ऐड दिस पॉइंट एज वेल, दैट कितना हमारा प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कप हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिश. सो डी हियर स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. कितना ड्यूरेबल है उस पे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी. इफ दैट प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल तो उसकी इलास्टिसिटी रहेगी हाई, लेकिन अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो हम कितना खरीदेंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट, राइट, तो इन इलास्टिक हो जाएगी उसकी डिमांड. सो लेट अस सी ड्यूरेबिलिटी इज पॉइंट नंबर 5. See, the demand for durable goods is relatively elastic. For example, furniture, washing machine, etc. उनके प्राइस पे अगर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उनके डिमांड पे असर होगा. लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल सब्जी है, वो कितनी भी सस्ती हो जाए तो क्या हम बहुत सारी खरीद सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो पेरिशेबल है ना. तो अगर हम बहुत खरीद लेंगे तो वो 2-3 दिन के बाद तो खराब ही होनी है, तो क्या करेंगे हम ज्यादा खरीद के. तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से हम खरीदते हैं. सो दैट इज व्हाई उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है. गेटिंग इट? सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे डी, दैट इज ड्यूरेबिलिटी. डिश, आई स्टैंड्स फॉर इनकम. अगर हमारा इनकम बहुत अच्छा है, ज्यादा इनकम है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसी की प्राइस कितनी है कमोडिटी की, राइट. तो हमारे लिए डिमांड विल बी इनइलास्टिक. लेकिन अगर हमारा इनकम कम है तो किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम जो डिमांड करेंगे उस पे असर होगा बच्चों, राइट. तो इसीलिए हमारे लिए डिमांड इलास्टिक हो जाएगी. इट विल डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर कंज्यूमर. तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट नंबर 7, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम. अगर ज्यादा इनकम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ इंक्रीज भी हो जाए प्राइसेस, तो मतलब एक्सट्रीमली पुअर है या बहुत ज्यादा रिच है तो फर्क नहीं पड़ता है प्राइसेस से. अगर हम पुअर है बहुत ही ज्यादा तो अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो वैसे भी हम खरीद नहीं पाएंगे, राइट. लेकिन अगर हमारा जो इनकम है वो मीडियम है तो जरूर अफेक्ट होता है प्राइसेस से. ओके, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम, इस पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिश. S stands for
सब्स्टिट्यूट्स, जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी, लेकिन अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में देखते हैं सारे जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, इतने सारे वैरायटीज है, तो इफ वी सी क्लोजली उनके जो प्राइसेस होते हैं वो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा प्राइस रहेगी तो वी विल शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट, है ना, हम क्यों महंगा प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन अगर किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो वी आर बाउंड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, जिस भी कीमत पे हमें वो मिल रहा होगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू point number 2, availability of substitutes. Demand for a commodity will be more elastic if its close substitutes are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane juice, etc. But commodities having no close substitutes like salt, the demand will be inelastic. All right. Dish, DIS. H क्या है देखते हैं. H stands for habits. अगर कोई भी हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी है तो उसकी डिमांड कैसी होगी बताइए मुझे। उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए, अगर मुझे उस चीज की आदत है तो आई एम गोइंग टू बाय दैट कमोडिटी। लेकिन अगर वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है तो उसकी जो डिमांड है दैट विल बी इलास्टिक, राइट। तो यहां पे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4, हैबिट्स. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. For example, addicted goods, drugs, etc. अब जो भी addictions होते हैं उनके चाहे आप prices बढ़ा भी दो, लोग खरीदेंगे because they are used to it. Alright, whether good or bad that is a different issue. लेकिन अगर हमें उस चीज की आदत है, उस चीज की लत है तो हम जरूर खरीदते हैं, तो उनकी जो डिमांड है that is inelastic. Alright, so dish हमने देख लिया यहाँ पे, और लास्ट हमारा शॉर्ट कोड है nut. N stands for nature, the nature of the commodity, whether it is a necessity or it is a luxury. Necessity अगर है मतलब मुझे जरूरी ही है वो प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड जाहिर है इनइलास्टिक होगी ना, चाहे आप प्राइसेस कम कर दो, ज्यादा कर दो, आई एम गोइंग टू बाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, इवन इफ मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट्स को अगर जरूरी है वो मेडिसिन लेना तो दे आर गोइंग टू बाय दोज मेडिसिन। लेकिन अगर ऐसे कोई गुड्स है जो भी लग्जरी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार खरीदना, एसी खरीदना, है ना, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो जो प्राइस है उससे इनके डिमांड पे असर होता है, तो ये हो जाते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। लेट अस रीड, हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ commodity. By nature, we can classify commodities as necessities, comforts, and luxury goods. Demand for necessaries like food, grains, medicines, textbooks, etc. is inelastic, and for comforts and luxury goods like cars, perfumes, furniture, demand is relatively elastic. Getting it? Next point क्या है? Nut. N हो गया nature of the commodity. U से हो जाएगा urgency. अगर किसी भी चीज की हमें सख्त जरूरत है तो even if the price is little high, we are going to buy it, right? तो मतलब वो inelastic हो गया। लेकिन अगर किसी चीज की हमें अर्जेंसी नहीं है तो हम रुकेंगे ना, जब तक उसका प्राइस करेक्ट नहीं हो जाता हम उस चीज को बाय नहीं करेंगे, राइट? तो उसकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। ऑलराइट, सो दिस इज पॉइंट नंबर 8, urgency of needs. Goods which are urgently needed will have inelastic demand. For example, medicines. Luxury goods which are less urgent have relatively elastic demand. Okay, and last point है हमारा T, that stands for time period. मतलब अगर कम टाइम है बच्चों तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्वियसली इनइलास्टिक होगी, लेकिन इफ इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली द इलास्टिसिटी विल बी देयर, सो रिलेटिवली इलास्टिक होगा डिमांड अगर लॉन्गर पीरियड है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में द इलास्टिसिटी इज लेस। ओके, सो ये है हमारा पॉइंट नंबर 9, टाइम पीरियड। Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of the time period. Generally, longer the duration of the period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because a consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodities. मतलब अगर हमारे पास ज्यादा वक्त है तो हम हमारे habits, preferences change कर सकते हैं, right? तो उस हिसाब से
कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कम वक्त है तो हम वो चेंज नहीं कर पाते, राइट? सो इसीलिए जो इलास्टिसिटी है वो भी यहाँ पे कम होगी। ऑलराइट, तो ये हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमारा शॉर्ट कोड है कप, डिश एंड नट। इफ यू वांट ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी ये तो हमने देखा हुआ है ना, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपको लिखना है आई डिसएग्री विथ दिस स्टेटमेंट, और रीजंस में आप लिखोगे द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या लिखा है? लेट अस रीड। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? देखो, दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस राइजेस। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ गई फिर भी कंज्यूमर ज्यादा बाय कर रहा है, या फिर बाइज लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। अरे भैया प्राइस कम हो गई है फिर भी आप क्वांटिटी डिमांड कम कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही हमें देखना है, ये एक्सेप्शन है। क्या लिखा है देखो आगे, इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, नॉर्मल डिमांड कर्व हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो क्या होगा? द स्लोप इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि अगर एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है तो उसका स्लोप कैसा है? एक्सेप्शनल है तो स्लोप अपवर्ड्स है, बट नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा इस तरह से डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, अब जो एक्सेप्शंस है वो क्या है? लेट अस सी। ये एक्सेप्शंस याद रखने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड बनाया हुआ है बच्चों यहाँ पे। दिस सेज जीपीएस हिप। ओके, 6 एक्सेप्शंस है यहाँ पे। जीपीएस HIP. What does G stands for? The first exception, which is the most important, G stands for Giffen's paradox. ये बच्चों आपको अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, ओके, या शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। दैट गिफेंस पैराडॉक्स का क्या मतलब है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है गिफेंस पैराडॉक्स। लेट अस रीड। Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if the price falls. मतलब ऐसे कोई गुड्स हो सकते हैं जो क्वालिटी जिनकी बहुत खराब है, लो क्वालिटी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। तो ऐसे गुड्स के केस में हमें एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है जिनका नाम गिफिन है, वो हमें कहते हैं दैट अगर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स हैं और उनकी प्राइस कम हो गई तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली, बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑलरेडी बहुत खराब है। दे आर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। ओके, times demand decreases when the price of such commodity falls. यहां तक बोल रहे हैं गिफिन दैट अगर वो कमोडिटी जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं उनकी प्राइस कम हो गई तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ये भी हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेट अस रीड दैट एग्जाम्पल, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior good like meat. This is known as Giffen's paradox. अब इसका क्या मतलब है? Now let us understand. ये बहुत सालों पहले उन्होंने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया है। तो कुछ जो वर्किंग क्लास पीपल थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, they had limited resources. For example, let us assume that किसी के पास 100 रुपीज है, पूरे फैमिली का अगर हमें खाना खिलाना है, हमारे पास 100 रुपीज है, तो वी हैव 2 चॉइसेस। हमारे पास है ब्रेड एंड देन वी हैव मीट, बट ऑब्वियसली मीट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड ब्रेड जो है बिकॉज हमारा इनकम कम है तो हम एकदम लो क्वालिटी का ब्रेड अभी खरीद रहे हैं, इंफीरियर गुड है हमारे लिए। नाउ लेट अस अज्यूम दैट हमारा जो हाउस होल्ड है उसका इनकम 100 रुपीज है। 100 रुपीज में हमें ये फिट करना है, थोड़ा ब्रेड खरीदेंगे और थोड़ा हम मीट खरीद सकते हैं। अब हमने अगर ऐसे सोचा है दैट ओके 40 रुपीज का हम ब्रेड खरीद लेंगे, ऑलराइट, और जो मीट है वो बाकी का पैसे में मीट आ जाएगा, तो अभी 100 माइनस 40 दैट इज 60 रुपीज। ओके, ये नॉर्मल सिचुएशन में ये हो रहा है किसी हाउस होल्ड में। अब क्या होता है, अब जाके जो ब्रेड है वो ऑलरेडी इंफीरियर क्वालिटी का है, उसकी कीमत और कम कर दी। नाउ दिस ब्रेड की कीमत हो गई है 30 रुपीज। अब हमें यहाँ पे गिफिन क्या बताते हैं कि अगर ये जो इंफीरियर क्वालिटी का ब्रेड है उसकी कीमत कम हो गई है तो हम ब्रेड की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे,
हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास जो एक्सेस 10 रुपीज बच रहे हैं ना, देखिए 40 माइनस 30, ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए हमारे पास। तो हमने क्या किया, वो 10 रुपीज हमने मीट खरीदने में लगा दिए, तो यहाँ पे हम 70 रुपीज का मीट खरीदेंगे। वापस अगर प्राइस कम हो जाएगी ब्रेड की, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड की प्राइस अभी 20 हो गई, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा, 40 माइनस 20 रुपीज बच गए। तो हम क्या करेंगे, वो एक्सेस 20 रुपीज यहाँ मीट खरीदने में लगा देंगे, हम 80 रुपीज का मीट खरीदेंगे, बिकॉज फॉर अस मीट वी कंसिडर इट एज अ सुपीरियर क्वालिटी फूड। जो ब्रेड है उसकी क्वालिटी ऑलरेडी खराब है, तो जो खराब क्वालिटी है वो हम ज्यादा क्यों खरीदे, थोड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा, बट अब हम जो पैसा बचा है वो हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम मीट पे उतना पैसा खर्च कर देंगे। ओके, ही ऑब्जर्व दिस इन इंग्लैंड एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टेटिंग दैट अगर लो क्वालिटी है, खराब क्वालिटी का गुड़ है, तो इवन दो उसका प्राइस कम होगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ेगा, क्वांटिटी सुपीरियर क्वालिटी के गुड़ का बढ़ सकता है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझना। ये जो गिफिन्स पैराडॉक्स है आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन्स पैराडॉक्स। आई होप ये क्लियर है बच्चों। ऑलराइट, सेकंड क्या है, जीपीएस ना, पी स्टैंड्स फॉर प्रेस्टीज गुड्स। ये क्या है, लेट अस रीड द सेकंड पॉइंट। Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even when their prices are high. ये तो हम देखते हैं ना आस पड़ोस में, प्रेस्टीज गुड्स जो होते हैं जिससे आप आपकी इमेज बनाते हो, आपको ऐसे लगता है जितनी महंगी गाड़ी होगी या जितने में डायमंड्स या गोल्ड खरीदेंगे उतना हमारा प्रेस्टीज होगा सोसाइटी में, उतना रेप्यूटेशन होगा। तो even though the price of gold is increasing, even though the diamond prices are increasing, even though luxury cars के prices बहुत होते हैं, exorbitant होते हैं, फिर भी उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद नीड, उनकी जरूरत नहीं है, वो प्रेस्टीज है जो दिमाग में हमने एसोसिएट किया हुआ है। दैट इज द रीजन इवन दो देयर प्राइसेस इंक्रीज, उनकी डिमांड भी बढ़ती है, राइट। एंड थर्ड इज जीपीएस, एस स्टैंड्स फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या है, लेट अस रीड। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट prices to rise still further. In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. Anticipation मतलब फ्यूचर में शायद प्राइस बढ़ेगी, अगर ये आपको भनक लग जाए तो आप क्या करोगे, राइट नाउ यू विल डिमांड मोर, बिकॉज आपको पता है अरे फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ने वाली है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था बच्चों, जहां पे हमने assumption पढ़ा था, राइट। यहाँ पे अगर मुझे पता है दैट पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी आगे जाके, तो मैं क्या करती हूँ, फटाक से जाती हूँ पेट्रोल पंप में और ज्यादा पेट्रोल हम भर लेते हैं हमारे फ्यूल टैंक में, राइट। तो सिमिलरली जब भी हमें पता चलेगा दैट फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है एंड वी नीड दैट कमोडिटी, देन वी आर गोइंग टू बाय इट इवन एट द प्रेजेंट प्रीवेलिंग हाई प्राइस। देखिए एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। अब पता है ना, तो दिवाली पे बहुत सारा डिमांड होगा, तो क्या होता है, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फिर भी हम खरीदते हैं बिकॉज वी नीड दोज प्रोडक्ट्स इन दिवाली। सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट अ हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइसेस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली। तो अभी लोगों को पता है दैट दिवाली में प्राइसेस बढ़ जाएंगे इन एसेंशियल कमोडिटीज के, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही वो स्टॉक करके रख लेते हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी या कम होगी इसकी अगर भनक लग जाएगी, तो आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो पहले 3 पॉइंट्स हमने क्या देखे एक्सेप्शंस के, जीपीएस, जी स्टैंड्स फॉर गिफिन्स पैराडॉक्स, पी स्टैंड्स फॉर प्रेस्टीज गुड्स एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पेक्यूलेशन। ओके, और अगले 3 क्या है देखो, HIP, हिप। सो H इज व्हाट, हैबिचुअल गुड्स, हैबिट। जो भी हैबिट फॉर्मिंग गुड्स होते हैं बच्चों, उनकी हमें इतनी आदत लग जाती है that even though their prices change, हमारा demand is not going to decrease. Okay, simple है ना, जो भी habit forming है, जैसे टी है, कॉफी है, there are people who have alcohol, even though हमें पता है that this is not good for your health, लेकिन हमें आदत लग गई, और जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है, even though their prices increase, the demand is not going to go down. So let us read, this is point number 6.
Habitual goods. Due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in required quantity even at higher price because the seller, the manufacturer is aware that it is a habit forming commodity. एक बार habit लग गई तो you are going to buy it even though the price is increase. Okay, next point is I. What does I stand for? I stands for ignorance. Let us read ignorance का क्या मतलब होता है. Point number 5. Sometimes due to ignorance people buy more of a commodity at high price. Ignorance मतलब पता नहीं है. This may help when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. अगर आपको मम्मी ने बाहर भेजा और आपको बोला कि जा बाहर जाके सब्जी लेके आ, एंड मम्मी ने आपको प्राइस नहीं बताई, तो what are you going to do? You go and you just purchase that particular commodity even though you don't know what is the price. आपको शायद वो ज्यादा में भी सब्जी बेच देगा तो आपको पता नहीं चलेगा. फिर आप घर पे आते हो, फिर मम्मी बोलती है दैट अरे इतने में कैसे खरीद लिया, इसकी तो प्राइस कम थी. Now why did you purchase it at a particular price? Because you are ignorant about the prevailing prices. आपको जब अगर पता ही नहीं है that इस चीज का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, तो you are going to buy at whatever price because you are ignorant. So our point here, our exception is if a person is not aware, if he is ignorant, he is going to buy more even at a higher price. Okay, and our last point is प्राइस इल्यूजन. इल्यूजन मतलब हमें एक भ्रम होता है, उसे हम बोलते हैं इल्यूजन. नाउ लेट अस रीड पॉइंट नंबर 4. कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी. हमें इस तरह लगता है कि बाबा अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है ना, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो इस तरह का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है बहुत बार. सो दैट इज व्हाई, देखो बच्चों, अगर हम ब्रांडेड गुड्स देखेंगे, कोई भी घड़ी आप खरीदो टाइम तो सही दिखाती है, देन व्हाई डू यू थिंक दैट सर्टेन ब्रांड्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं? व्हाई? बिकॉज हमें एक प्राइस इल्यूजन होता है दैट इतनी महंगी घड़ी है ना, मतलब there is going to be something different, right? So we have that illusion in mind that if a particular commodity is charging us more, if price is more, matlab we are getting a better quality product. Okay, that might be true in some scenarios, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा. That is why हम इसे बोलते हैं there is an illusion of price, that अगर प्राइस ज्यादा है इसका मतलब इसकी क्वालिटी बेटर है. Okay, let us read. Therefore, the demand for such goods tends to increase with a rise in prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at a high price. मतलब कितने भी ज्यादा प्राइस हो जाए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम उन्हें बाय करते हैं बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि बाबा इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, इसीलिए इनके प्राइस बढ़ रहे हैं. दैट माइट बी द केस, ओके, बट नॉट ऑलवेज. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इसे हम बोलते हैं प्राइस इल्यूजन. तो हमने कौन से 6 एक्सेप्शंस देखे बच्चों? क्विकली, शॉर्ट कोड क्या है हमारा? GPS एंड HIP. देखिए ये आपके सामने है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये शॉर्ट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि आपको रिकॉल करने में हेल्प हो एग्जाम में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लोप ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व इज स्टीपर. नहीं, दिस इज, I disagree with this statement because जो स्लोप होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व का, वो कैसा होता है? वो फ्लैट होता है. So let us quickly revise that. That is relatively elastic demand. Okay, elastic है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, relatively elastic है. Let us read. When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. More than proportionate change मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 50% कम हो गई, लेकिन जो डिमांड है वो डबल हो गई, या डिमांड है वो ट्रिपल हो गई, तो हम बोलेंगे कि बाबा ये जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज इंक्रीज है दैट इज मोर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस. ऑलराइट, लेट अस सी. देखिए हमारा ये जो ग्राफ है, ओरिजिनल हमारी प्राइस थी P और ओरिजिनल क्वांटिटी थी Q. प्राइस थोड़ी कम हो गई, देखिए इतनी से कम हो गई है, P से P1 हो गई प्राइस, लेकिन क्वांटिटी कितने से बढ़ गई? क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. देखो OQ1 डबल है, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक. मतलब ED अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1. ED कैसे निकालेंगे? देखो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी
अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। यहाँ पे इस एग्जांपल में आ रहा है 100 अपॉन 50, so that gives us 2. ओके, सो रिलेटिवली अगर इलास्टिक डिमांड है तो आपका जो ईडी है दैट इज ग्रेटर देन 1, कितना भी हो जाए 1 से ज्यादा होना चाहिए तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक है। ओके, 3, 4, 5, 10, 20, 100 जो भी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 हम बोलेंगे दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चलो आगे क्या लिखा है, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू OP1, यहाँ पे हमने देखा ग्राफ में डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, तो डिमांड का जो इंक्रीज है दैट इज 100%। Therefore, डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप। ये जो स्लोप हम देखेंगे वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है ना, इट हैज अ फ्लैटर स्लोप, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, इट हैज अ फ्लैटर स्लोप। ओके, फर्स्ट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मुझे बताइए ये जो स्टेटमेंट है, डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स यू अग्री, राइट? ये चैप्टर में हमने बहुत बार देखा है that the demand curve slopes downward from left to right. तो अब आपको reasons के साथ ये लिखना है, तो किस तरह प्रेजेंट करेंगे देखिए आपको इस तरह लिखना है पेपर में, देखिए yes I agree that the demand curve slopes downward from left to right. जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आगे बस आपको लिखना है yes I agree. ओके, अगर अग्री है तो yes I agree लिखेंगे, अगर नॉट अग्री है तो आप लिखोगे no I do not agree. ओके, बट विथ व्हाट? तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपने क्वेश्चन से ही उठाया है। ओके, दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज योर अग्रीमेंट का स्टेटमेंट। लेकिन आप अग्री क्यों कर रहे हो, इसके लिए आपको अभी रीजंस लिखने हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह आपको पॉइंट वाइज रीजंस लिखने हैं बच्चों। ओके, पैराग्राफ्स मत लिखना, प्लीज एंश्योर दैट यू राइट पॉइंट वाइज, सो इट इज वेरी वेरी क्लियर, एग्जामिनर को फटाफट से देखते आता है दैट अच्छा ये बच्चे ने बराबर से लिखा है। Okay, when you write paragraphs and essays, it becomes very difficult for the examiner to understand. Okay, हमारा point क्या है ये सब लिखने का, ताकि एग्जामिनर को ये समझे दैट हमें आता है, राइट? तो ये कैसे समझेगा? अगर हम प्रॉपर से प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, हमारा प्रेजेंटेशन अगर हॉच पॉच है, एग्जामिनर को समझने नहीं वाला है कि आपने क्या कहा है। सो प्लीज एंश्योर दैट जो पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो इस तरह से आपको लिखना है, 1 2 3 4 रीजंस। ऑलराइट, सो नंबर 1 रीजन आप स्टेट करोगे दैट बाबा हमारा जो डिमांड का लॉ है वो क्या कहता है, स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइसेस आर हाई द क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर एंड व्हेन द प्राइसेस आर लो द क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर। ओके, तो ये हमारा लॉ कहता है। एक आप फटाक से इस तरह से एक डिमांड कर्व बना देंगे जहां पे यू आर गोइंग टू शो क्वांटिटी एंड प्राइस। ऑलराइट, एंड फर्स्ट आप दिखाओगे दैट ओरिजिनल प्राइस वाज P, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज Q। When the price went up, प्राइस P1 हो गई तो क्वांटिटी कम हो गई Q1। ओके, when प्राइस P2 हो गई, कम हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई Q2। ओके, आप पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाता है, DD इज योर ग्राफ। ओके, यू हैव टू गिव दिस एक्सप्लेनेशन दैट जैसे मेरी प्राइस बढ़ गया मेरा डिमांड कम हो गया, जैसे मेरा प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गया। और वी कैन सी इन द ग्राफ दैट द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपने ग्राफिकली भी दिखा दिया। एंड याद करिए हमने वहां पे रीजंस भी देखे थे, वो वाला लेक्चर किसी को याद है? हमने क्या देखा था वहां पे, व्हाट आर द 5 रीजंस जिसके वजह से डिमांड कर्व स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, वो आपको अभी यहाँ पे स्टेट करने हैं। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। व्हाट आर दोज रीजंस? क्विकली किसी को शॉर्ट कोड याद है? द शॉर्ट कोड दैट वी हैड यूज्ड देयर वाज MSDIN। देखिए ये हमारा शॉर्ट कोड था। ओके, किसी को याद नहीं होगा, गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, मैं दे रही हूं लिंक। ओके, सो दीज आर द 5 रीजंस जिसके वजह से डिमांड कर्व हमारा स्लोप होता है डाउनवर्ड। M स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज यूज, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट, D स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, I स्टैंड्स फॉर इनकम इफेक्ट एंड लास्ट इज N which stands for न्यू कंज्यूमर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं बिकॉज ऑफ विच द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके बच्चों, ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको कितना आंसर लिखना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है। ओके, तो अगर ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करते हैं तो यू विल जस्ट एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स। ओके, बट एंश्योर दैट यू कवर ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अ बेटर एक्सप्लेनेशन टू दिस। ओके, आर यू गेटिंग दिस? This is how you're going to write, okay, agree या disagree में point wise always, and first statement जो है that will always be जो आपका question पूछा गया है। okay, उसके आगे आपको prefix लिखना है yes I agree और no I do not agree। ठीक है, चलो next क्या है agree disagree में देखते हैं question।
प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब बताइए मुझे, क्या प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट? नो, देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स। हमने एक पूरा लेक्चर देखा था जहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही कवर किए थे हमने, राइट? और हमने वहां पे एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड भी देखा था बच्चों। ओके, वो शॉर्ट कोड मैं यहाँ पे आपके लिए दे रही हूँ। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं दे रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में, नो आई डू नॉट अग्री दैट प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, अब रीजंस लिखोगे 1 2 3 4। ओके, बिकॉज देयर आर मेनी अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड व्हिच आर एज अंडर। ओके, और सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद 1 और 2 लाइंस का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ओके, व्हिच आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? शॉर्ट कोड याद करिए, क्या था? द शॉर्ट कोड वाज IPS PC TT NAP and O। ओके, जिस किसी को याद नहीं है प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ओके, शॉर्ट कोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस तरह अगर शॉर्ट कोड्स आपके लर्न हो जाएंगे तो आपको लिखना बहुत आसान होगा। ओके, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको लॉन्ग आंसर फॉर्मेट क्वेश्चंस है। ओके, तो शॉर्ट कोड इज वेरी वेरी क्रुशियल फटाफट रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, यहाँ पे डिटेल वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट, when price of given goods fall, the demand for it increases। अभी गिफिन्स पैराडॉक्स याद करिए, दिस वाज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जब हमने एक्सेप्शंस देखे थे उस लेक्चर में गिफिन का हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। क्या होता है गिफिन गुड्स मतलब? किसी को याद है? याद करिए, गिफिन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी होते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पे पता चला कि अगर इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, उनकी प्राइस अगर कम हो जाती है फिर भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। डिमांड फॉर द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। इंफीरियर क्वालिटी के गुड की डिमांड नहीं बढ़ती है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आप इस तरह से आंसर लिखोगे बच्चों, देखिए, नो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था, उससे आप अग्री नहीं करते हो, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपने वो लिखा है यहाँ पे, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट ऑल्सो फॉल्स। ये आपको लिखना है कि मेरे हिसाब से सही ये होना चाहिए दैट गिवन गुड्स की जब प्राइस कम हो जाती है तो उसके डिमांड भी कम हो जाती है। एंड नाउ गिव रीजंस। मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया, आपको थोड़ा एलैबोरेट करना होगा बच्चों। ओके, गिवन गुड्स मतलब क्या है वो आपको सबसे पहले लिखना है कि गिवन गुड्स तो बाबा इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जिसे हम गिवन गुड्स कहते हैं। ओके, सेकेंडली आपको जो बिहेवियर ऑफ ब्रेड की स्टडी की गई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आपको जो सर रॉबर्ट गिफिन का एक्सपेरिमेंट है वो फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दैट लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, राइट? उससे वो क्या करते हैं, बिकॉज ब्रेड कम पैसों में ब्रेड आ जाता है तो ज्यादा ब्रेड और कम मीट खरीदते थे। लेकिन जैसे ही ब्रेड की प्राइस कम हो गई तो उनके पास अवेलेबल जो पैसा था उससे उन्होंने एक्स्ट्रा मीट खरीदा, ब्रेड ज्यादा नहीं खरीदा। ओके, दिस इज नोन एज द गिफिन्स पैराडॉक्स। ये आपको यहाँ पे लिखना है, विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है बहुत बड़ा। और आगे आप लिखोगे, दिस हैपेंस बिकॉज एवरी पर्सन wants to constantly increase his standard of living। ये क्यों हो रहा है ऐसे? बिकॉज हर एक को ऐसी इच्छा होती है दैट मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो। अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, आई विल ट्राई टू गेट समथिंग ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी rather than buying an inferior quality good। Okay, there is a direct relationship between price and quantity demanded in case of given goods। Okay, inferior quality के goods अगर होंगे तो there is a direct relationship। इज दिस क्लियर? किस तरह से आपको लिखना है ये?